Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. And as they say, in every system there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined by esteemed guests in the studios tonight. It's Shailesh Pandey from the Bharatiya Janata Party. Shailesh Pandey, namaskar, welcome to the show. We got Nazir Hussain Saab from the Indian National Congress. Nazir Hussain Saab, welcome to the show. Welcome to the show, Nazir Hussain Saab. And shortly we'll be joined by Mahmood Deshmukh from the Aam Aadmi Party. The topics that we discuss is prakar se hai ki Sanjay Raut has got a 15 days jail sentence and he's been fined 25,000 ka fine Sanjay Raut ji ko. Kirit Somaiya, Medha Somaiya case. Is it a hit on democratic rights, on democracy, the freedom of speech, expression? Congress, Rahul Gandhi ji ka कहना है हाथ बदलेगा हालात. Rahul Gandhi ji says हाथ बदलेगा हालात in Haryana and Jammu Kashmir. We are going to see a government headed by the Congress. And Kejriwal asking RSS five questions by Kejriwal to the RSS. Will the RSS answer the 5 questions? पहले शुरू करते हैं शैलेश पांडे जी. पांडे जी, शैलेश पांडे जी, can you hear me? Have you got Shailesh Pandey on the line? Nazir Hussain Saab, we begin with you. आप इस 25 days के jail sentence को नाजिर हुसैन साहब किस प्रकार से देखते हो? How do you see it? 25,000 fine. Are we talking about encroachment जो बोलते हैं insidious encroachments on liberty, freedom of speech, values जो freedom of speech, expression, faith, worship, belief को क्या affect करता है? How do you see it, Nazir Hussain Saab? Court verdict on Sanjay Raut, Nazir Hussain Saab. I think both of them cannot hear. Engineering, please connect. कितनी बार बोला हाँ एक टिकट देता हूँ. आरपीआई को बोला ये देश के लेकर को तो लेके आऊँगा मैं. हाँ. Nazir Hussain Saab, can you hear me now? Engineering, can we connect both of them, please? The sound is not going through. The sound is not going through. Now, what has happened where the cases is concerned, Medha Somaiya, Kirit Somaiya, जिस प्रकार से they approached on criminal defamation और criminal defamation का जो award आया है, वो sentence है 15 days for Sanjay Raut and you got 25,000 fine on Sanjay Raut. He has to pay. He's been bailed out, but then is it something that is encroachment on liberty, freedom of speech? शैलेश पांडे जी, are you on? आप सुन सकते हो? जी. नासिर हुसैन साहब, are you on? आपकी आवाज आ रही मगर काफी इको है आवाज. I am starting with शैलेश पांडे जी. Please engineering connect नासिर हुसैन साहब. शैलेश पांडे जी, आप इस चीज को कैसे देखते हो? किरीट सोमैया, मेधा सोमैया केस, संजय राउत को 15 दिन 15 days of jail sentence और 25,000 फाइन. संजय राउत जी का कहना ये अपेक्षित था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मोदी साहब वहां गए थे वो मोदक खाने के लिए, तो तभी मुझे इंसाफ मिलने का कोई सवाल ही नहीं. पांडे जी कैसे देखते हो आप? शैलेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी. देखिए प्रदीप जी, संजय राउत सुबह दोपहर शाम जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ अपनी दकियानुसी फालतू और बिना तथ्य के तथ्यहीन बात करने के लिए कुप्रसिद्ध है और उनके तथ्य विहीन बातों के कारण ही आज जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, मैं तो न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं और ये एक तरह से अभी भी संजय राउत के लिए सबक है कि ये सुबह दोपहर शाम अनर्गल प्रलाप बंद करें और अब इस पर वो फिर कोई ना कोई दकियानुसी बात अपना करना प्रारंभ करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा. और न्याय व्यवस्था को तो इन्होंने तो कह दिया है कि संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने
इस लोकसभा चुनाव से सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना और झूठ बोलना इनका एक बोलते हैं कि पहला कर्तव्य अपना समझ के बैठे हुए हैं और अपने कर्तव्य का ये निर्वहन कर रहे हैं, झूठ बोल के, अफवाह फैला के। और मैं ये मानता हूं कि अभी भी न्यायपालिका का इन्हें सम्मान करना चाहिए। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको सोचते हुए समझते हुए ये जब भी जो भी मन में आता है ये कुछ भी प्रलाप कर देते हैं। इस तरह का अनर्गल प्रलाप बंद करना चाहिए संजय राउत को और न्यायपालिका के निर्णय को शिरोधार्य करते हुए शिरोधार्य करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यायालय का और न्यायपालिका के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। सैयद नासिर हुसैन साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या आप इसको इंसीडियस एनक्रोचमेंट ऑन लिबर्टी, एक थी एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उनको फाइन भी कर दिया, उनको जेल सेंटेंस भी सुना दिया, बट वेरियस जो गॉसिप चल रहा है पूरे पॉलिटिकल सर्कल्स में, धीरे 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 फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बीइंग हर्ट, हाउ डू यू सी दैट? नासिर हुसैन साहब। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, आज टेक्निकल थोड़ा इशू है। हाँ। बट मेरी आवाज पता नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है। आई कैन हियर यू परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच। देखिए संजय राउत, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। संजय राउत के बयान पे अगर अदालत ने कुछ बोला है तो उस पर टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ। उसी दूसरी अदालत ने उन्हें उस सजा के ऊपर रोक भी लगा दी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर हमारे पास मीडिया के थ्रू ही कोई जानकारी मिलती है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, अगर कहीं स्कैम और घोटाला हो रहा है, अगर हम मीडिया के, हेलो, आई कैन हियर यू, बोलिए बोलिए नासिर हुसैन साहब बोलिए। एक्चुअली क्या है, आपके सेकंड गेस्ट के आपस में डिस्कशन हो रहा है, इसकी वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके, इंजीनियरिंग प्लीज कंट्रोल द काइंड ऑफ। ओके, तो एक अदालत उसी फैसले पे रोक भी लगा देती है और दूसरी अदालत जो है उसको सजा भी देती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके बोलने का हक है। आपको किस बात से उस पर ऐतराज है? अगर यही ऐतराज था घोटाले के ऊपर उनके बोलने का, तो 2G घोटाला आपके सामने है। 2G घोटाला के इन्होंने दिन रात एक हमारी यूपीए सरकार के ऊपर हमला किया, जो अदालत के अंदर फेल हुई। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया सबको, पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2G घोटाला को पूरे देश का आंदोलन बना दिया था, जो बात में इनके मुंह पे वो एक तरह से एक बेइंतहा तमाचा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने मारा। आखिर क्या हुआ उस 2G घोटाले का? तो इसी प्रकार अगर ये स्कैम है, अगर उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर आप जाके मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं। एक एक्यूज से ही आप बोलते हैं कि आप अब एविडेंस लेके आओ, वो लेकर आओ, तो वो कैसे लाके कर सकता है? एविडेंस देना सरकार का काम है, कहाँ घोटाला वो सरकार को दे सकती है। आप विपक्ष से अगर स्कैम का घोटाला मांगने लगेंगे तो विपक्ष तो फिर कल से सवाल उठाना ही बंद कर देगी। अगर हर बात पे अगर हम कोर्ट जाने लगे तो यहाँ लोकतंत्र का ही हत्या हो जाएगा, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर हमारे सवाल से आपको ऐतराज हो तो आप अदालत जाने लगे, आपके पास जवाब नहीं है, दूसरी अदालतें उन्हीं की सजा को रोक लगा देती है, तो वो भी एक तमाचा ही है आपके मुंह। वो भी एक तमाचा है। शैलेश पांडे जी, यही है संजय राउत जी का कहना है कि देखो राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार से अटैक हुआ था कोर्ट्स के माध्यम से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, आज संजय राउत, चुनाव है 2 महीने के बाद और आप संजय राउत को चुप कराना चाहते हो। पांडे जी, आपने सैयद नासिर हुसैन साहब का भी सुना, बोलिए बोलिए। देखिए प्रदीप जी, नासिर हुसैन साहब जी ने जो कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी विषय पर आरोप, किसी को चोर कहना और चोर कहने का आरोप लगाना, प्रश्न करना और उसको निर्णय देना, ये दोनों में फर्क होता है। संजय राउत जी प्रश्न तो खड़ा करते ही है, प्रश्न खड़ा करने के साथ वो अपनी अदालत का वो निर्णय भी दे देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चोरी हुई है या इसमें घोटाला हुआ है, वो है इसकी इंक्वायरी की जाए। वो सीधे कहते हैं कि इसमें ये घोटाला हुआ है और फला आदमी चोर है, इसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। तो आज किसी भी सभ्य पुरुष को, किसी भी समाज सेवक को, आज किरीट सोमैया जी की जो धर्म पत्नी है मेधा सोमैया जी, जबकि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो एक समाज सेविका के तौर पे जानी जाती है, वो एक सामाजिक संगठन चलाती है। राजनीति में तो चलो किरीट जी हैं, उनके लड़के हैं, लेकिन
उनकी धर्मपत्नी तो नहीं है, और किसी के भी राजनीति में है इसलिए किसी की पत्नी पे आरोप लगाना और एक समाज सेविका को आप सीधा घोटालेबाज कहना, आपने उसको चोर कहना, मुझे ये लगता है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये एक तरह का प्रश्न खड़ा नहीं करना हुआ, ये एक तरह का जो उन्होंने सीधा सीधा उनको घोटालेबाज और चोर कहा। और ये भी कहा, मैंने आज उनका स्टेटमेंट न्यूज चैनल पे बड़े बारीकी से सुना, क्योंकि ये निर्णय आने के बाद मुझे पता था कि आज बहुत सारे चैनलों पे इस विषय पे डिबेट होगी। तो मैंने उन्होंने जो आज बाइट दी है मीडिया को, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे ये विषय मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उनको पत्र के द्वारा दिया, फिर उसके बाद वहाँ के विधायक प्रताप सरनाईक ने वो कंप्लेंट किया और उसके बाद वो विषय उनके पास आया, फिर उन्होंने उस पर अपना वक्तव्य दिया और मैंने प्रश्न खड़ा किया, अरे भाई आपके ही पार्टी के प्रवीण पाटिल थे उस वक्त, आपके ही पार्टी के प्रताप सरनाईक थे उस वक्त, तो आप इतने बड़े नेता हो, लोकसभा के सांसद हो कई टर्म से, शिवसेना के आप उद्धव ठाकरे जी के बाद सबसे बड़े नेता हो और आप एक बहुत बड़े अखबार के संपादक हो, तो आप भी, और दूसरी बात आपकी पार्टी भी सरकार में रह चुकी है, आप भी सत्ता में रह चुके हो, सत्ता किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से कोई निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, कब किस पर क्या आरोप कब लगता है या निर्णय कब आता है, ये सारी प्रक्रिया तो आपको भी पता है ना। तो जिन्होंने आपको ये कंप्लेंट दिया या आपके पास कंप्लेंट आया, तो पहले आपने उसको ठोक बजा के देखना चाहिए था ना, उसके अंदर पूरे आपने घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है या सच्चाई क्या है, सच्चाई तो आप परख लेते, परखने के बाद फिर आप निर्णय देते। आप तो सीधा सवेरे 9 बजे उठते हो और आप सीधा निर्णय देते हो, फला आदमी चोर है, फला आदमी डकैत है, फला आदमी जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए, फला आदमी गद्दार है, फला आदमी ये कोई तरीका नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, अपने भी कर्तव्य का निर्वहन का भी दायित्व दिया है, तो आपको संवैधानिक अधिकार भी दिए हुए हैं। उन सारी चीजों का भी आपने किसी की मानहानि ना हो, किसी का मान मर्दन ना हो, कोई एक समाज सेविका है जो अच्छा काम कर रही है उसके ऊपर आप उसके मानहानि कर रहे हो, आप उसके जो अच्छे कार्यों के ऊपर क्षति पहुंचाते हो, तो ये भी तो सही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी, और मैं आज सिर्फ संजय राउत को नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को ये कहूंगा कि आप कोई भी वक्तव्य देने के पहले आप सिर्फ मीडिया का सेंसेशन मत बनिए, ब्रेकिंग न्यूज देने वाला नेता मत बनिए, आप जो तथ्य है वो तथ्यपूर्ण बात करिए। ब्रेकिंग न्यूज नेता मत बनो, सैयद नासिर हुसैन साहब पांडे जी का कहना है। मगर राहुल जी ने 5 चीज पहले कहा, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड, माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर, राइट विंग एक्टिविस्ट। नासिर हुसैन साहब बोलिए। प्रदीप जी, बीजेपी के वक्ताओं के लिए बोलना काफी आसान है, पर ये जो बोलते हैं उसमें कितनी झूठ है वो आप देखिए। ये सुमित करेया जी की बात करते हैं तो उस पर कौन सी जांच की आपने, ये बताइए। कोई जांच की अदालत के अंदर आपने कोई सब जाके एविडेंस रखा? सरकार की काम था कि वहां मजबूती से बात को रखना, उसने ना जांच की ना कुछ की, वहां जाके अपनी बात नहीं रख पाए तो बोलते हैं स्कैम नहीं हुआ। कैसे स्कैम नहीं हुआ? उस स्कैम की तो जांच तब होगी जब हम सत्ता में आएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं आज घोटाला नहीं हुआ है? मैं बार बार क्यों आपको 2G का याद दिला रहा हूँ? जावेद भाई, आप सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन जिस वक्त ये कंप्लेंट किया गया था मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, तभी आपके पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो आपने इंक्वायरी, आप ही अदालत बन जाओ, आप ही कोर्ट बन जाओ तो नहीं चलेगा ना। सुन लीजिए। नहीं, मैं आपके आप जवाब नहीं है ना आपके पास, नहीं, मैं जवाब का तर्क दीजिएगा ना। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सरकार उस वक्त आपकी थी। आज सरकार आपकी है, आप उस पर बात करते हैं। कल नहीं, जब कंप्लेंट हुआ था तभी भी सरकार आपकी थी। कंप्लेन होने से जांच उसी दिन कंप्लीट नहीं हो जाती। नहीं, अच्छा समय था, नहीं, अच्छा वक्त था आपके पास। संजय राठौर पे क्या बोलोगे आप?
उसके 500 करोड़ का घोटाला आज हमने पकड़ा, 500 करोड़ का। आज संजय राठौड़ ने खुद सामने से आके बोलता है कि मैं जमीन वापिस करूंगा, जो मंत्री है आपके सरकार में, उसके बारे में क्या बोलोगे? ये घोटाला है या नहीं है? 500 करोड़ का अपने नाम पे वो जमीन ले लेता है, नवी मुंबई में जमीन कब्जा करता है, आप उस पर क्या बोलोगे? उस घोटाले के ऊपर विजय वडेट्टीवार ने खुलेआम ऐलान किया कि 500 करोड़ का जमीन बंजारा समाज का आपने कब्जा किया है। बाद में उसने उसको एविडेंस को सबूत माना गया, उसने खुद कबूल किया कि मैं इस जमीन को वापिस करूंगा। उसने क्यों घोटाला किया, उस पर क्या बोलोगे आप? तो ऐसा नहीं है कि घोटाला नहीं हो रहा आपकी सरकार में, सरकार की काम है सही से जांच करना। हमने कहा ना 2G घोटाला में आपने देश को बरगलाया, तभी इसका फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे तमाचा मारा या नहीं मारा, सबको बरी किया या नहीं, उसके लिए देश से कितना बार माफी मांगा आपने? राहुल गांधी को कितनी बार आपने झूठे एलिगेशन लगाए? आज आपके राजस्थान के अध्यक्ष ने क्या कहा कि उनके पासपोर्ट को कैंसिल कर दो। किस बेस पे बोला कैंसिल करने के लिए? कोई ग्राउंड था? झूठ बोला उस पे। हमने तो कोर्ट अदालत नहीं जाते, हम पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल तरीके से लड़ते हैं, अदालती लड़ाई अदालती तरीके से लड़ी जाती है। मगर आप पॉलिटिकल लड़ाई को अगर अदालत तक ले जाएंगे तो ये इस तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अदालती राज आएगा, पुलिसिया राज आएगा। उसके खिलाफ हम करें। लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि घोटाला नहीं है। आपके सामने संजय राठौड़ का 500 करोड़ का घोटाला है, आपने उस मंत्री को हटाया अपने पद से। आप बड़ी बड़ी बातें करके आप तस्वीर बदल सकते हैं, मगर लोगों का चेहरा नहीं बदल सकते। आपके डीएनए में घोटाला साबित है। आप 3600 करोड़ का शिवाजी महाराज का स्टेचू गिर गया, कौन सा पैसा आपने वापस कर दिया? वो कौन ठेकेदार थे, कौन कॉन्ट्रैक्टर थे जिससे 3600 करोड़ रुपए का वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू गिर जाता है चंद महीनों में, जिसका प्रधानमंत्री जिसका इनॉग्रेशन करके जाते हैं, जिसका उद्घाटन करके जाते हैं? आपने क्या किया है मेरे भाई? आप कैसे बात कर रहे हो कि घोटाला नहीं हो रहा है? ये पूरी सरकार करप्ट में है, पूरी सरकार करप्शन में लिप्त है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। चारों तरफ स्कैम 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 ही नजर आ रही है। ये 2 महीने से लेकर 1.5 महीने की सरकार है, इसके बाद इसकी जांच होगी। जितनी घोटाले हैं सब जेल के अंदर नजर आएंगे आपको। मैं महमूद देशमुख, पांडे जी आपसे पहले मैं महमूद देशमुख जी के पास जाऊंगा। महमूद देशमुख जी, ये आप थोड़ा लेट आए, ये बात हो संजय राउत पर, जिस प्रकार से संजय राउत 15 दिन जेल और 25,000 फाइन, जिस प्रकार दोनों को सुन लिया आपने, आपका क्या कहना है कि इस ये जजमेंट को कैसे देखते हो, ऑर्डर को कैसे देखते हो? बेल तो मिल गया संजय राउत को, बोलिए। देखिए ऐसा है ना, ये मामला अदालत में है, इसके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, संजय राउत जी एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वो खुद मतलब पत्रकारिता में रहे, संपादक रहे हैं। तो अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में कहा है तो उसमें सच्चाई होगी। ठीक है, आज जो सिस्टम पूरा इनके हाथ में है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो आज इनके हिसाब से ही मतलब हर चीज चल रही है, ये आप भी देख रहे होंगे। तो मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर संजय राउत जी ने जो इल्जाम लगाया इसमें तो मतलब बेशक इसमें कुछ ना कुछ मतलब सच्चाई हो सकती है। केजरीवाल जी भी आवाज उठाए हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसीज वगैरह का इस्तेमाल हो रहे हैं टू डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट, टू स्टॉप द लीडर्स को, और तो कैसे आप देखते हो? मींस इसको आप, संजय राउत जी ने भी कहा कि मोदक जब प्राइम मिनिस्टर खाने गए सीजेआई के घर में, तब मुझे मालूम था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इसमें क्या इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप देशमुख जी? देखिए ऐसा है ना, ये जो हादसा जो उस दिन हुआ था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, वो ठीक है, हमने तो एक धार्मिक मसला था, इसके लिए ज्यादा उसमें नहीं तवज्जो नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है किसी को भी इस पे शंका होगी। और आज पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं, तो उससे ये दिखाई देता है, ऐसे भी मतलब जुडिशरी प्रेशर में काम करती है, और उसके बाद अगर इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रधानमंत्री के साथ में अगर नजर आता है, तो लोगों के मन में शंका आना मतलब जायज है। तो और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, आज पूरे देश में अगर पिछले 10 साल में अगर आप देख रहे होंगे, तो दबाव में पूरी एजेंसी है, वो ईडी हो, सीबीआई हो, है ना, इनकम टैक्स हो, ये सभी एजेंसी है जो बोलिए देशमुख जी। हाँ, जो स्वायत्त संस्था कहलाती है, सभी प्रेशर काम कर रही है। तो आज जो कुछ हो रहा है, ये मतलब इन्होंने अपने एक कठपुतली बना के रखी है सभी एजेंसियों को। इवन मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या सीबीआई हो, मतलब हर एजेंसी को इन्होंने मतलब कठपुतली बना के रखी है। तो आज जो कुछ हो रहा है वो मनमानी तरीके से हो रहा है और वो गलत हो रहा है। पांडे जी, शैलेश पांडे जी, आप उंगली उठा रहे थे, आप बोलना चाहते थे।
आप बोलना चाहते थे जो जिस प्रकार सफाई और सैयद नासिर हुसैन साहब ने किया। पांडे जी, देखिए, नासिर हुसैन जी ने जो अभी जो चीजें न सिद्ध हुई है न सामने आई है, वो सारी बातें गिनाने लग गए, तो मुझे तो लगता है कि संजय राउत से भी बड़े नेता नासिर हुसैन जी हैं, और बने, मेरी शुभकामना है इनको। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये भी बताना चाहूँगा कि यही महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जब 100 करोड़ रुपए के वसूली के घोटाले के आरोप लगे थे, और वो भी इनके पुलिस कमिश्नर ने लगाए थे, और उसके बाद इनके गृह मंत्री जेल गए थे। तो ये भी भूलना नहीं चाहिए। यही वो लोग थे आज जो बात करेंगे कि उद्योग क्यों नहीं बढ़ता, व्यापार क्यों नहीं बढ़ता, और इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के नीचे, अंटालिया के नीचे, इनके ही सरकार के उस वक्त के पुलिस अधिकारी और अन्य लोग मिलकर वो बम विस्फोट कराने के लिए जिलेटिन रखते हैं, ताकि वो इस तरह से एक बड़ी वसूली की जाए। तो ये जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, तो ये महावसूली सरकार थी। ये तो पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। दूसरी बात, वो जब कोविड था, कहते हैं ना, संकट में, दुख में कभी भी किसी का एक रोआ भी दुखाना नहीं चाहिए, एक रोआ। लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार ने क्या किया उस वक्त की महापौर आपके लोगों ने वहां पर कफन घोटाला किया, कोविड का घोटाला किया, उसके अंदर दवाइयों का घोटाला किया, कोविड के जो सेंटर्स बनाए जा रहे थे उसके अंदर घोटाला किया। मतलब आदमी के दुख और संकट और आंसू के साथ घोटाला करने का महापाप अगर किसी ने किया इस धरती पर, तो वो महाविकास आघाड़ी की आपकी सरकार ने किया। क्या इसके लिए आपके पास कोई जवाब है? क्या इसके लिए आपकी सरकार, क्यों वहां से लोग हट गए? क्यों उन घोटालों के कारण लोग त्रस्त हो गए थे? शिवसेना के जो विधायक थे, क्यों विचारधारा से हटने के कारण वो लोग महाविकास आघाड़ी सरकार का, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं? ये सारी चीजें जग जाहिर हैं। इसलिए कभी भी किसी पर भी एक उंगली उठाने के पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि 3 उंगली आपकी तरफ है, 3 उंगली है। क्या आप दे सकते हैं 100 करोड़ घोटाले का जवाब? क्या दे सकते हैं कोविड के अंदर कफन घोटाले का जवाब? क्या आप दे सकते हैं कोविड के अंदर जो कोविड सेंटर के घोटाले का जवाब? क्या लोगों के मौत, लोगों के आंसू पर किए हुए महाभ्रष्टाचार का जवाब आप दे सकते हो? क्या दे सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आरोप लगाने के पहले कभी भी सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए। नासिर हुसैन साहब, you heard, you want to reply? झूठ इतना तेज मत बोलो कि उजाला ही खत्म हो जाए। बार बार झूठ बोलने से कोई रोशनी नहीं आ जाएगी। मैं भी बोलता हूं, अभी इन्होंने बात किया अनिल देशमुख साहब के बारे में, कुछ बोला ही नहीं। तो अनिल देशमुख ने तभी खुलेआम ऐलान किया, खुलेआम ओपन चैलेंज किया देवेंद्र फडणवीस को कि उस समय पुलिस कमिश्नर के थ्रू आपने एक महाविकास आघाड़ी के सरकार को गिराने की साजिश रची गई। किस तरह से महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम उस वक्त आपने किया, वो बम विस्फोट आपने ही कराया, आपने ही वो, नहीं तो पुलिस कमिश्नर क्यों भाग जाता? पुलिस कमिश्नर रनवे था महाराष्ट्र से, आपको पता है, रनवे हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट देता हूं, तुम साइन कर लो, तुमको जेल से बाहर लाऊंगा, अनिल देशमुख को बोलते हैं, और सरकार में शामिल करने की बात करते। अनिल देशमुख ने तो ओपन चैलेंज किया कि आपके पास कोई एविडेंस है तो दिखाओ। तो उस समय देवेंद्र फडणवीस खुद उस समय स्कैम में शामिल थे, और आप कहते हैं घोटाला घोटाला, कफन घोटाला, खिचड़ी घोटाला। कौन सा घोटाला साबित कर दिया आपने? कोई घोटाला है तो आप दिखाओगे ना, सिर्फ एलिगेशन ला। मैंने जो घोटाला कहा 500 करोड़ का संजय राठौर पे, वो तो साबित होता है, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने 500 करोड़ का जमीन लिया है, मैं वापस करता हूं सिडको को, उनका स्टेटमेंट है। तो आप दूसरे इधर उधर की बातें करके झूठ नहीं सामने आ जाएंगे, जो सच है वही सामने आएगा। तो आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए कि उस समय देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश रची, महाराष्ट्र के पुलिस को बदनाम किया। अरे पीएम केयर से बड़ा भी कोई घोटाला है? उस कोविड काल में लोगों को पैसा लूट के क्या किया आपने? सत्ता का मजा लिया। पीएम केयर फंड में कितना पैसा हुआ, कितना आया, आज तक देश को पता है। वैक्सीन घोटाला आपने किया, पीएम केयर घोटाला आपने किया, और नाम दूसरे पे लगा रहे हो। अरे घोटालों की सरकार, मैं पहले वाक्य से कह रहा हूं, ये पूरी सरकार घोटाले में लिप्त है। नहीं तो 3600 करोड़ लगा के शिवाजी महाराज का स्टेच्यू 3 महीने में, 4 महीने में गिर जाए, वो घोटाला नहीं है तो क्या है? पीएम केयर फंड घोटाला नहीं है तो क्या है? तो आप कौन सी बात से कह रहे हो? ये संजय राठौर का घोटाला नहीं है तो क्या है? तो आप बड़ी बड़ी बात करो। आपको अनिल देशमुख ने ओपन चैलेंज किया है,
आप उस पर जवाब दो। देवेंद्र फडणवीस उस दिन से खामोश हो गए, उनके पास से आवाज नहीं आई। आपने जो एक्ट लगाया उस पे अनिल देशमुख को जमानत मिल गई। आपको मालूम उस एक्ट में जल्दी जमानत मिलना आसान नहीं होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें भी जमानत मिल गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको तमाचा दिया है, आप उसको अभी भी नहीं। तो मैं कहता हूं 1.5 महीने की ये सरकार है, 1.5 मंथ में ये सरकार जाएगी। जो घोटालेबाज बैठे हैं वो सब जेल के सलाखों में होंगे। नहीं, आप सुन लीजिए ना, 2024 का यही लोकसभा इलेक्शन, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले को महाराष्ट्र की आवाम ने क्या फैसला दिया, कहां से कहां बैठा दिया, ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस को कहां लाया। इसी महाराष्ट्र की आवाम ने आपके मुंह पे बेहतरीन तमाचा मारा। जितनी झूठ बोलोगे उतनी तेज तमाचा खाओगे। ये लोकतंत्र का तमाचा है, लोकतंत्र तरीके से आपको हराएंगे। हम गलत बात नहीं करेंगे, हम झूठा एलिगेशन नहीं लगाएंगे। जिस तरह से 2G घोटाले का आपने झूठा एलिगेशन लगाया, विनोद राय के थ्रू आपने देश में खेल खेला, उसने देश ने देखा यही हाल है तो 240% आपको जनता बोले जल्दी। बोलिए पांडे जी, शॉर्ट में बोलिए, फिर देशमुख जी के पास जाते हैं। हाँ, शॉर्ट में ही मैं ये कहता हूं कि अगर इतनी सारी बातें ये कर रहे हैं तो फिर कौन से लोग आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर मैंने कहा ना कि सरकार आने दीजिए, कार्रवाई होगी। देखिए मेरे भाई, आपकी एजेंसी सुन लीजिए ना शैलेश भाई, सुन लीजिए एक मिनट शैलेश भाई, आप लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दो मेरे भाई। बिल्कुल शैलेश भाई बोलिए आप, मैं आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सरकार की बात है, एक विपक्ष की बात है। एजेंसियां आपकी है, सरकार आपकी है, जांच कौन करेगा? विपक्ष के पास क्या पावर है? विपक्ष तो आप सवाल खड़ा कर सकता है, जांच एजेंसियां आपके कंट्रोल में। आप जिस तरह नेशनल हेल्थ में आप बोल छोड़ के आते हैं, आप बोलते हैं नेशनल हेल्थ 5000 करोड़ का घोटाला है जो आप साबित नहीं कर पा रहे, आप उसी तरह ये सारे घोटाले हैं जो हम साबित करेंगे। एजेंसियां जब हमारे हाथ में आएगी तो ये घोटाले सामने आएंगे। तो मैंने संजय राठौर का एक एग्जांपल दिया। संजय राठौर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये जमीन मैंने गलत तरीके से घपला किया है। 500 समझ गए घपला। संजय राठौर क्यों खामोश हो जाते हैं? बोलिए देखिए कैसा है पांडे जी, ये जरूरी नहीं कि हर घोटाले को सरकार ही पकड़ती है या सरकार ही उजागर करती है। सरकार कौन पकड़ेगा मेरे? अब मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए सर। देखिए आपको शायद जानकारी होगी, इसके पहले भी कई घोटाले देश में ऐसे हुए हैं। कांग्रेस के घोटाले को भी कई मीडिया के लोग, कई सोशल एक्टिविस्ट लोग कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस घोटाले को उजागर किया है। बाद में उसके बाद कई केंद्रीय मंत्री भी जेल में गए हुए। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और रही बात प्रदीप जी, देशमुख जी के पास जाऊंगा। एक मिनट शैलेश भाई, उस घोटाले का नाम भी बताते चाहिए ताकि आप व्यूअर को मालूम पड़े कि आप किस घोटाले के बारे में बात। बोलिए मैं देशमुख जी, पांडे जी, मैं देशमुख जी के पास। प्रदीप जी नहीं, एक सेकंड, मेरा वाक्य एक पूरा हो जाने दीजिए। मेरा एक वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। यही कारण रहा कि आज कांग्रेस पार्टी पिछले नरेंद्र मोदी जी के 2014 के पहले जब 10 वर्षों तक राज कर रही थी देश के अंदर, तो इनके घोटाले की इतनी लिस्ट लंबी हो गई थी कि 100 घोटाले हुए थे, जिसमें 20 लाख हजार करोड़ से ज्यादा घोटाले हुए थे। और उसके कारण ही आज देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार बनाया। इन्होंने कहा कि हमने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया। अरे राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, वैसा नहीं किया। राहुल गांधी ने सिर्फ संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया, अफवाह फैलाई। लेकिन फिर भी इस देश की सुजान जनता ने राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के झूठ को स्वीकार नहीं किया। और ये ऐतिहासिक रूप से इस देश के अंदर लगातार तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश की जनता ने किया है, जनता जनार्दन ने किया है। और आपके अफवाह को, झूठ को दरकिनार किया, ठोकर मारा है। इसलिए आप का झूठ वो जनता ने उजागर किया। आप तो कहते थे हम आएंगे, 8,000 रुपए देंगे, हम आएंगे, हम तो कल आ रहे हैं, कल आके सरकार बना रहे हैं। कहां बनी आपकी सरकार?
अरे ठीक है, कुछ आपके आंकड़े बढ़ गए, कुछ हमारे आंकड़े घट गए, लेकिन देश की जनता ने विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर किया है और देश की जनता के विश्वास पर खरे उतर रहे नरेंद्र मोदी जी। और पांडे जी, महमूद देशमुख जी, आप सुने, पांडे जी को सुने, नासिर हुसैन जी को सुने, देशमुख जी योर कमेंट्स। अच्छा प्रदीप जी, पांडे जी तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं। पिछले 10 साल में वाकई में अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना है, ये उनका अधिकार है। अगर ये तारीफ नहीं करेंगे तो ये प्रवक्ता नहीं बने रहेंगे। ये तारीफ कर रहे हैं और 10 साल के अपने काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वाकई में अगर इन्होंने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया होता तो इनका जो नारा था 400 पार, अब की बार 400 पार, इस 400 पार की बजाय 240 पे नहीं आते, ये बैसाखी पे नहीं आते। पांडे जी, इस चीज को हम बार बार दोहराए, अच्छा नहीं है। आप भी मतलब हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं। तो 10 साल में आपने क्या किया ये दुनिया जानती है। मैं अभी आपको ये कहूँगा प्रदीप जी, एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाविकास आघाड़ी के यहाँ पे आज महायुति की सरकार है। अभी अभी ऐसा मतलब जानकारी है कि कम से कम 36 से 40 हजार करोड़ के जो बिल जो है कॉन्ट्रैक्टर के वो बाकी हैं, और 31 सितंबर के बाद 30 सितंबर के बाद सभी कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पे जाने वाले। जो अलग अलग इन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन उनको अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हुआ। पुराना जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार की तिजोरी खाली है। और एक तरफ यहाँ पे एक नाथ शिंदे जी लाड़की बहन योजना के तहत लोगों में पैसे बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को बिल नहीं पास नहीं हो रहा है। तो एक ढकोसला चल रहा है एक तरीके से। ये खोखली सरकार है, ये सिर्फ इन्होंने तमाशा बना के रखा है। सरकार की तिजोरी खाली है। कॉन्ट्रैक्टर को बदलापुर एनकाउंटर क्या है, इससे पूरा चेंज कर देंगे। बदलापुर एनकाउंटर की अगर आप बात करेंगे तो आप बदलापुर एनकाउंटर ये एक शर्मनाक घटना है। ये मैं समझता हूँ कि उस स्कूल के प्रिंसिपल को बचाने की, उस स्कूल के ट्रस्टी को बचाने की है एक तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है ना। एक हंसने वाली बात है, एक मामूली सा आरोपी जो है, वो बलात्कारी का आरोपी जो है, वो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं था। वो मतलब कैसे पलटवार कर रहा है और आपने उसको एनकाउंटर कर दिया। ये सिर्फ एक हंसने वाली बात है। मैं तो समझता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात के ऊपर। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि उस स्कूल के ट्रस्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी है, उसको बचाने के लिए मतलब एनकाउंटर किया। और ये जो दाग लगे हुए हैं ना बदलापुर की, इस गवर्नमेंट के दामन पे जो दाग लगे हैं, उस दाग को मिटाने की कोई हल्की सी कोशिश की जा रही है। ये मतलब तो तरस आता है इनके ऊपर। मैं समझता हूँ ये 1.5 महीने की सरकार नहीं, 1 महीने का सरकार कालावधि बचा हुआ है। अब इनका खेल खत्म है। आने वाले कल में मतलब दूध का दूध पानी का पानी। पांडे जी, मैं पहले नासिर हुसैन साहब से पूछता हूं, फिर आपके पास आता हूं। क्या नासिर हुसैन साहब, लाड़की बहन स्कीम है और महमूद देशमुख जी का कहना है कि लेटेस्ट फिगर्स है कि अकाउंट्स में पैसा नहीं है बैलेंस किसी को देने को कॉन्ट्रैक्टर, बट क्या बदलापुर एनकाउंटर एक टोटल चीज को चेंज कर देंगे, पूरे वातावरण बनाएगा बीजेपी? देवेंद्र फडणवीस हाथ में बंदूक लिए, पोस्टर पूरे मुंबई में लगा हुआ था, अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में लगा हुआ था। क्या एक स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिखा दिया इस एनकाउंटर से, नो कॉम्प्रोमाइज। वो ठीक है। अभी हमारे शैलेश जी ने जैसा बोला कि राहुल गांधी ने कुछ बोला कि लोकतंत्र खतरे में है, 8,000 बहनों को हम देंगे और संविधान खतरे में, ऐसी सी बातें की। हाँ। हम जो कह रहे हैं वो तो सच है ना। लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं आए? जब पुलिसिया राज आ जाए तो लोकतंत्र ही खतरे में आता है। लोगों की बोलने की आजादी जब खत्म होने लगे, जब हम बोलना शुरू करें तो हमें अदालत और जेलों के सलाखों में आप डाल दो, तो इसे बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आर्टिकल 19 हमें कहता है हमें बोलने की आजादी है। जब आर्टिकल 19 पे हमला हो जाए तो संविधान पे ही हमला होता है। तो हम इसी कहते हैं लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। लोगों ने जितने राइटर्स ने किताबें लिखी, आर्टिकल लिखी, लोकतांत्रिक बातें की, उन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया। 1-2 नाम नहीं है, आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो जेलों के सलाखों में सड़ रहे हैं। उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। अर्नब गोस्वामी जैसा बंदा ऐलान करता है, रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, उसे जेल के सलाखों से बाहर आ जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको अदालत सुनने को तैयार नहीं थी। तो हमने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, उस बात पे हम कायम थे, उस बातों पे लोगों ने यकीन किया। आपने कहा लाडली योजना की बात की, हमने कहा बहनों को 8,000 हम देंगे, 1 लाख सालाना देंगे। अब
उसमें आपको क्यों गलत दिख रहा है? अगर हम सत्ता में आते, उस बात को पूरा ना करते, मुकर्रर ना करते, तो आप हम पे एलिगेशन कर सकते थे। आज आपने ठीक इलेक्शन से 2-2.5 महीना पहले लाडली योजना क्यों लाए? ताकि बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट दे सके, क्योंकि हार आपके सामने है, बिल्कुल जनता आपको रिजेक्ट कर रही है, जनता बिल्कुल बदलने को तैयार है। और आप कह रहे हैं अदालत, अरे आपको अदालत पे यकीन नहीं है। मैं कहता हूं वो महात्मा नहीं था अक्षय सिंधे, वो एक रेपिस्ट था, उसकी जो सजा अदालत फैसला करेगी वो करती, मैं उसको बिल्कुल रेडी हूं, उसको कोई महात्मा मान नहीं रहा, पर अदालत के जरिए फैसला होना चाहिए। जब कसाब को भी हमने उसको एक राइट दिया कि आप उसको फांसी मिले, एक अदालत का एक रास्ता दिया, तो उसके थ्रू एक सबूत एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए। 6-6, 7-7 पुलिस ऑफिसर उसके साथ है, और एक नौजवान लड़का उनसे पिस्टल भी छीन लेता है, उन पे हमला भी कर देता है। तो ये कैसे पुलिस फायरिंग, ये कैसे पुलिस तंत्र बना रहे हैं कि पुलिस को अपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कि उससे कैसे निपटना है? अरे उससे पैरों में गोली मारते, उसे किसी तरह काबू कर सकते थे, उससे सबूत एविडेंस थे कि कौन कौन गुनहगार उसमें था। इसके बाद फांसी पे लटकाओ ना। कांग्रेस पहले दिन से कह रही उसे फांसी पे लटकना चाहिए, पर अदालत के थ्रू होना चाहिए, तभी तो इन लोगों की इंसाफ बढ़ेगी, लोगों की यकीन अदालत की तरफ बढ़ेगी, लोग उस इंसाफ को यकीन करते। पुलिसिया राज कभी नहीं लोग चाहेंगे कि पुलिस ठोक दे। ये यूपी बिहार जैसा राज आप अगर लाओगे तो जंगल राज बन जाएगा। जिस तरह आज अदालत ने क्या कहा, बिल्डोजर को रोक दो, जो यूपी मॉडल चल रहा था उसको रोकने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसके ऊपर लोगों ने कितनी पोस्टर लगाए, कितने ऐलान किया, मिठाइयां बांटे, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर तमाचा दिया आपको, बोला ये नहीं हो सकता है, बिल्डोजिया राज नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक राज चलेगा, संवैधानिक तरीका चलेगा। इसी को तो हम कह रहे थे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लोगों की जुर्म मैं करूं, अब मेरे परिवार के घर को तोड़ूं, एक गुनहगार है, पर आप पूरे परिवार को अगर सजा दोगे तो ये कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके पे हमला है, संविधान पे हमला है। अरे जुर्म के खिलाफ तो हम सब खड़े हैं। जुर्म आप अगर अक्षय सिंधे को आप फांसी देते, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा होता, मगर आपने किसी बेगुनाह को अगर बचा रहे हैं, कि गुनहगार को बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, ये तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सबूत तो बचा नहीं आपके पास, जो सबूत अदालत के सामने आप रख सकते हैं। तो आपको अब जवाब देना पड़ेगा कि क्या छिपाना चाह रहे थे, किसको बचाना चाह रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। किसको बचाना चाहते थे पांडे जी? देखिए प्रदीप जी, बुलडोजर एनकाउंटर से खुश नहीं है। यहाँ पर दोनों एनडीए अलायंस के प्रवक्ताओं के द्वारा बदलापुर की एनकाउंटर की घटना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं ये उस 2.5 साल के बच्ची का अपमान है, उसकी मौत का अपमान है, इस देश के मातृशक्ति का अपमान है, इस देश के और महाराष्ट्र की पुलिस शौर्य का अपमान है। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे भी आपके पास आता हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में कोई बोलने नहीं चाहिए। देखो आप में थोड़ा तो धैर्य होना चाहिए ना सुनने के बाद। आप जो बोल रहे थे, आप ऐसा मत बोलिए ना कि हम आपके गलत बातों के साथ नहीं, आप अपना पक्ष बोल रहे थे, मैं बीच में टोका नहीं। आप भी कौन सा सही बात बोल रहे थे? आप सही बात बोल रहे थे। सुनिए ना, मैं आपके पास आता हूं, आप सफाई दीजिए। नासिर साहब, लेकिन ठीक है, आप बोल रहे थे, मैंने धैर्यपूर्वक सुना, अब आप मेरी भी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिए। बोलिए ना सर, बोलिए ना। और आप शैलेश जी बोलिए, आप अगर बीच में टोकेंगे तो नहीं बोल रहे पांडे जी, बोलिए। मैं देखिए स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 2.5 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई थी, और उस नराधम को, उस कुकर्मी को आज जो एनकाउंटर हुआ, इस घटना का समर्थन करना, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं ये मातृशक्ति का अपमान है। और उस जिस पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसको मारा, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये पुलिस शौर्य का अपमान है। मैं ये मानता हूं कि आज जिस तरह से ठाणे में, बदलापुर में उसके मौत पर मिठाइयां बांटी गई, क्यों बांटी गई? क्योंकि यही विरोधी पक्ष के लोग उस वक्त रेलों को आंदोलन किए, उस वक्त बड़े बड़े आंदोलन हुए सरकार के खिलाफ कि इसको अभी का अभी फांसी दो, अभी मौत देनी चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज चलो इत्तफाकन कोई चीज घटना हो गई, उसकी मौत हो गई, एक बच्ची को न्याय मिला, मातृशक्ति को न्याय मिला, तो हमको उसका इजहार करना चाहिए, ना कि उस पर आक्षेप लेना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मान लो उस एनकाउंटर के बीच में जिस पुलिस वाले पर उसने गोली चलाई थी, खुदा ना खास्ता उसको अगर कुछ हो जाता, वो शहीद हो जाता, तो हम कब जवाब देते?
क्या पुलिस वाले के परिवार नहीं होते, उनके माँ बहन नहीं होते, उनके बेटे नहीं होते, उनका परिवार नहीं होता? मुझे जवाब देने दीजिए। मैं हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूं, हमारा ये, मैं तो महाराष्ट्र राज्य के पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिसने ऐसे जघन्य अपराधी को एनकाउंटर किया। और दूसरी बात, मैं उदाहरण के तौर पे एक बात कहता हूं, आप बोल रहे हो यूपी बिहार बना रहे हो, यही महाराष्ट्र है। जब यहाँ पर अपराध बढ़ा था, अपराधीकरण बढ़े थे, गैंगस्टर्स बढ़े थे, तब कितने एनकाउंटर हुए थे महाराष्ट्र में? तब उस महाराष्ट्र में भी एनकाउंटर्स हुए थे। ये एनकाउंटर होना महाराष्ट्र के लिए नई बात नहीं है, लेकिन जब जब अपराध बढ़ेगा तब इस तरह की एनकाउंटर होते रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस तरह से पुलिस प्रशासन को मैं देवतुल्य मानता हूं, जिन्होंने ऐसे जघन्य नराधम अपराधी का एनकाउंटर किया, और आज महाराष्ट्र की सारी माताएं बहनें खुश हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कल को उस 2.5 साल की बच्ची की तरह आपकी बच्ची होती, मेरी बच्ची होती, तो क्या वो दुख में शामिल नहीं होते? क्या आप रिपीट कर रहे हो कि आपने सुन लिया? मैं ये रिपीट कर रहे हैं। देशमुख जी थोड़ा बोलना चाहते हैं। एक बार एक सेकंड मुझे, 1 मिनट बोलिए, फिर मैं देशमुख जी के ज्यादा नहीं लूंगा। इनकी आत्मा कहाँ मर जाती है जब कठुआ में रेप होता है और उसी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के फेवर में जब रैली निकाल रही होती है, उस समय आत्मा अपना शैतान बच जाता है और बड़ी बड़ी बातें कर। हाथरस में जब मिट्टी तेल छिड़क के जला देते हो, उस समय तुम्हारी आत्मा मर जाती है। उन्नाव में तुम्हारा MP MLA बलात्कार करता है, उस समय आत्मा तुम्हारी मर जाती है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो 2.5 साल की, उस कठुआ के लिए कौन सी रैली निकालती? भारतीय जनता पार्टी रैली निकालती है। उन्नाव में कौन आता है? भारतीय जनता पार्टी आती है। हाथरस में कौन आता है? भारतीय जनता पार्टी आती। कौन से मुंह से तुम बात कर सकते हो 2.5 साल के बच्चे के? अरे आपकी हिम्मत नहीं थी उस समय उन बच्चों के साथ खड़े होने की, तो देश की एक पार्टी थी लोकतांत्रिक पार्टी जो कांग्रेस, उसके साथ खड़ी हुई। हमने न्याय की बात की, हमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आप बात करते हो 2.5, अरे हमने पहले ही शब्द में कहा वो परमात्मा नहीं शैतान है अक्षय सिंधे, उसे फांसी पर लटकना चाहिए। किसने उसका साथ दिया? आपने फिर कलकत्ता के उस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? बांग्लादेश में जिन हिंदू बहनों पर बलात्कार हुए उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए थी। आप नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप पश्चिम बंगाल कलकत्ता में नहीं, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में वो जो लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाए? फिर क्यों नहीं आप नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं की जो माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है, चिल्लाना बड़ा आसान होता है। सवाल उठाया है तो जवाब सुनो, सवाल उठाया तो आप जवाब सुनो। नहीं, तो मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि हमने रैली निकाली, हमने आवाज नहीं उठाई, तो आपने कलकत्ता के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों बांग्लादेश की बहन नहीं है? जवाब कलकत्ता की बहन अपनी बहन नहीं है, वो डॉक्टर बहन नहीं है। अभी फिर मिर्ची लगाता हूँ आपको, सुनो, फिर मिर्ची लगेगी। मैं पहले देशमुख जी के बाद ना सुनो, सुनिए देशमुख जी को बोलने दो। सुनिए इसकी बात नहीं, आप सुन लीजिए प्रदीप भाई, मेरी आवाज। अब 1 मिनट देशमुख जी को 1 सेकंड दीजिए प्रदीप, उसके बाद वो बोल लेंगे। 1 सेकंड दीजिए। राहुल गांधी ने सदन के अंदर ऐलान किया, बांग्लादेश में जो भारत सरकार फैसला करेगी उसके साथ हम होंगे। भारत सरकार के साथ थे। जो बांग्लादेश पे नीति भारत सरकार उठाएगी उसके साथ विपक्ष खड़ी रहेगी। हमारे खड़गे जी ने सदन में बोला कि हम भारत सरकार के साथ हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? सदन के बाद अरे राहुल गांधी तो सदन में कुछ बोलते हैं और विदेश में जाकर देश का बुराई करते हैं, प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे ऐसा ऐलान करते हैं। क्या आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? देशमुख जी बोलिए, देशमुख जी बोलिए, देशमुख जी महमूद देशमुख बोलिए, देशमुख जी बोलिए, देशमुख जी महमूद देशमुख जी बोलिए। आपने जो सवाल किया देशमुख जी बोलिए। नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास क्या बात करेंगे इन लोगों के बीच में? नासिर हुसैन साहब रुकिए, पांडे जी रुकिए जरा। देशमुख जी बार वही बातें बोलो। देशमुख जी बोलिए। देशमुख जी, पांडे जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मतलब वो एक कहावत है ना, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, उसके ऊपर चलती है ना। चोरी भी करो और सीना जोरी भी करो। क्यों पांडे जी ये करते हो? आप लोगों ने गलतियां की है, हमेशा आपने भेदभाव किया है। आप लोगों ने हमेशा ये देखा है
कि जो जिसपे रेप हुआ है वो किस समाज की बच्ची है, किस समाज की लड़की है, पहले ये देखा है आपने। और उस तरीके से आपने किया है जैसे अभी वो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया है, उन्होंने जो मैं कहना चाहता था वही उन्होंने कहा, उन्नाव हो, हाथरस हो, कठुआ हो, है ना, जहां जहां हो। अभी कुलदीप सेंगर ये किसका बंदा है, कौन से पार्टी से बिलोंग करता है, उसके सत्कार में, उसके फेवर में आपने रैली निकाली है। अभी मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा पांडे जी, आप धार्मिक बात करोगे, लेकिन बिल्किस बानो के हाथ जो मतलब बलात्कारी जो थे उनका सत्कार करती है गुजरात सरकार। हाँ, वो क्या कहोगे आप उसको? ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सा कल्चर है आपका? आप है जवाब आपके पास? जवाब दीजिए पांडे जी, दोनों का जवाब दे दो। पांडे जी बोलिए, पांडे जी जवाब दीजिए दोनों। नासिर हुसैन साहब को सुना, महमूद देशमुख जी को सुना। मेरा प्रश्न यही है कि इतने सारे प्रश्न उठाए गए, तो कलकत्ता में हमारी जो स्टूडेंट बहन के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी गई, आज महीनों से वहां के डॉक्टर्स रास्ते पे उतरे हुए थे, तो उसके बारे में कांग्रेस ने या इन प्रवक्ताओं ने क्यों नहीं बोला? बांग्लादेश के अंदर जो हमारी माताएं बहनों पे बलात्कार हुआ उस पे क्यों नहीं बोला? एक शब्द बोला क्या? इन्होंने कहा राहुल गांधी ने सदन के अंदर, अरे राहुल गांधी तो सदन के बाहर विदेशों में जाकर बात विदेश में जाकर करते हैं, ये इस देश का घोर अपमान है। मैं इसके पहले भी देश के विरोधी पक्ष नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उस वक्त की सरकार उनको विदेश में भेजती थी देश की बात रखने के लिए, वो जहां भी जाते थे देश का सर गौरव से ऊंचा करके आते थे, देश के हक में बात करते थे। लेकिन आज ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर रहते हुए भी देश के बाहर जाते हैं, देश की बदनामी करते हैं, और देश के बहुसंख्यक समाज, आदिवासी समाज, वनवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। आज इस देश में राहुल गांधी के प्रति बहुसंख्यक समाज का, आदिवासी, वनवासी, दलित समाज का, पिछड़े समाज का बहुत बड़ा रोष है। और भारतीय जनता पार्टी आज ये पूरे चुनाव में अफवाह उड़ाते रहे कि हम संविधान खत्म कर देंगे, और ये संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, और आज ये बात ही नहीं कर रहे। इसके पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, इंदिरा गांधी जी रही हो, राजीव गांधी जी रहे, ये इनकी नीति हमेशा से आरक्षण खत्म करने की रही है। और संविधान में बदलाव करने का काम अगर इस देश के अंदर किसी ने किया है तो एक बार नहीं, 90 से ज्यादा बार, लगभग 100 बार संविधान के अंदर संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले संविधान में राम दरबार का फोटो रहता था, भगवान नटराज का फोटो रहता था, आज ये सारे फोटोज कहाँ हैं? ये 1976 में सेकुलरिज्म जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया, कहां था ये सेकुलरिज्म का शब्द संविधान के अंदर? आज पूरे संविधान को तहस नहस करने का काम इस देश के अंदर अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की बात ये जनता जनार्दन के सामने एक न्यूज चैनल पे करना, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। नासिर हुसैन साहब जवाब दीजिए। नासिर हुसैन साहब, मैं 1 by 1 जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। बिल्कुल। मैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि बीच के पलों को आगे, मैं शुरू में, आप जहां उन्होंने कहा देश के बाहर अगर राहुल गांधी जाते हैं तो देश की बदनामी करते हैं। अरे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। वो जो कहते थे 2014 से पहले जो इस देश में पैदा होता है उसको शर्म आती थी। कौन से नागरिक को देश में शर्म आई 2014 से पहले पैदा होने वाले से? उस नागरिक का चेहरा देखना चाहता हूं मैं। वो देश के नागरिक देखना चाहते हैं कौन 2014 से पहले इस देश में शर्म महसूस करता था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें फक्र महसूस होता था कि हम इस देश में पैदा हुए, हम इस देश में ही मरेंगे, इस देश के मिट्टी में मिल जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री को शर्म आती थी कि देश में 2014 से पहले क्यों पैदा हुए। यह बात करोगे, इसको बोलते हैं विदेशों में जाके भारत को गाली देना। आप बोलते थे भारत करप्शन की वजह से जाना जाता है, यह कौन बोलता था? रशिया और कनाडा में जाके देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। तो आप कैसी बात कर रहे हो? देश को अगर बदनाम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और इन्होंने कहा 2019, 2014 मोहन भागवत ने क्या कहा था? आरक्षण की अब विचार करना चाहिए, आरक्षण अब खत्म कर देनी चाहिए। बिहार के इलेक्शन में बोला, मंच पे बोला, जो रिकॉर्ड में है। इसी प्रकार आपने आरक्षण के लिए नफरत करके दलितों वंचितों से कर्पूरी ठाकुर की सरकार भी गिरा दी थी। आप बोलते हो वंचितों पे कैसे कैसे हमला किया है आपने, बड़ी
76 की बात की है तो मैं आपको 67 में ले चलूं, 65 में ले चलूं। आप संविधान में संशोधन को बोलते हो संविधान बदल देंगे। अरे संशोधन राइट है, संविधान नहीं बदला जाता है। संशोधन को संविधान बदलना नहीं कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर के सरकार को गिरा दिया ओबीसी के नाम पे। जॉर्ज फर्नांडिस ने लाल कृष्ण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आपने चुनाव नहीं लड़ने दिया, चुनाव हरा दिया। आपकी कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ो। अरे आपने कांग्रेस पार्टी लड़ी उनके खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ। आज आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, लोकमान्य तिलक का अपमान किया, स्वतंत्र वीर सावरकर को तो आज तक गाली दे रहे हो आप लोग। जितने स्वतंत्रता सेनानी है सभी को गाली देने का ही तो काम किया है कांग्रेस ने। सावरकर ने देश के लिए क्या किया है जो उनको महान? अरे सावरकर ही एकमात्र इस देश के अंदर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको एक जीवन के अंदर 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली, काला पानी की सजा मिली। 11 साल उन्होंने काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में वहां पर उनके तपस्या को उंगली उठाते हो, टिप्पणी करते हो। ये स्वतंत्र वीरों का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, देश का अपमान है। आपने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, लोकमान्य तिलक जी का अपमान किया, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, स्वतंत्र वीर सावरकर जी। केजरीवाल जी ने 5 प्रश्न पूछा है आरएसएस से। केजरीवाल जी ने 5 प्रश्न पूछा है आरएसएस से, 5 प्रश्न पूछा है आरएसएस से। महमूद देशमुख जी, उसके बारे में क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस जवाब देगी? नहीं, मोहन भागवत जी से सवाल किए हैं, आज तक उनके जवाब नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब आरएसएस और मोहन भागवत जी जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार किया है उससे सहमत हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इस देश के अंदर जो मतलब अराजकता फैला रखी है, जो भी मतलब गलत काम हो रहा है उसकी उससे सहमत है। आरएसएस उसकी समर्थक मानी जाएगी। अच्छा, इंजीनियरिंग, प्लीज ट्यून देम ऑन इंजीनियरिंग। आई वांट बोथ नासिर हुसैन साहब एंड पांडे जी। नहीं, जो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज सावरकर ने भगत सिंह के लिए क्या कहा था ये बताओ। चलो, बहुत बड़ी बातें कर रहे हो ना सावरकर के लिए। सावरकर ने भगत सिंह को क्यों गाली दी, चलो बताओ क्यों कहा? भगत सिंह को महात्मा गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया ये बताओ। फांसी से अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, वो चाहते हैं तो भगत सिंह को फांसी की सजा से बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को, बताओ क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मुझे ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं बचाया? दोनों से बाबा साहब कांग्रेस, क्यों नेताजी सुभाष पांडे जी, कांग्रेस पार्टी पांडे जी मजबूर कर दिया कांग्रेस ने? मुझे बताइए कितने गोलियां खाई कांग्रेसियों ने, मुझे बताइए ना। आज शहीदों ने, आज स्वतंत्र क्रांतिकारियों ने गोलियां खाई। स्वतंत्र वीर सावरकर, आप जिनके बारे में टिप्पणी करते हो ना, वो एक जीवन में 2 बार काला पानी की सजा। प्रदीप जी बोलिए महमूद देशमुख जी, बोलिए महमूद देशमुख जी। पांडे जी, हाँ बोलिए। एक मुझे आप बताइए, हाँ, पांडे जी सुनिए, किसने गोलियां खाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, इस देश के अंदर 1857 से, सुनिए पांडे जी, महमूद देशमुख जी को बोलने दो, महमूद देशमुख जी को बोलने दो। आपके आरएसएस वाले कहाँ थे? बीजेपी वाले कहाँ थे? आरएसएस वाले मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, आरएसएस वाले अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे उस दौरान, इस जंग 1885 में। कांग्रेस, सुनिए, परम पूज्य डॉक्टर बड़ीराम हेडगेवार, केशव बड़ीराम हेडगेवार जी खुद उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के। आप इतिहास पढ़ो जरा पहले, क्या बात करते हो? इतिहास पढ़िए। आरएसएस बना उस वक्त कांग्रेस उस वक्त कांग्रेस जो थी वो देश को आजाद कराने के लिए एक ये था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन सारे देश के लोग एकजुट हुए थे देश की आजादी के लिए। लेकिन आपने गांधी परिवार की पार्टी बना दिया उसको, गांधी परिवार की पार्टी बना दिया। मुखबरी आप अंग्रेजों की करते थे, इसीलिए तो आपके ऊपर गोली नहीं चली कभी, इसीलिए तो सावरकर को जेल में डाला। पांडे जी, भगत सिंह, पांडे जी, महमूद देशमुख जी का प्रश्न सुने, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए फिर जवाब देते। थोड़ा सुनिए प्रदीप जी, आप बोलिए, महमूद देशमुख जी बोलिए।
प्रदीप जी, बोलिए पांडे जी, जल्दी बोलिए। पांडे जी, जब आप बोल रहे थे, बोलिए देशमुख जी बोलिए। पांडे जी, देशमुख जी बोलिए। पांडे जी, हाँ पांडे जी, ये गलत तरीके से चल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। देशमुख जी आप बोलिए जब ना। बात कर रहे थे, जब मैंने देशमुख जी नहीं बोलिए। बात की, आप बीच में बात क्यों कर रहे हैं? देशमुख जी बोलिए। बनाए रखे। देशमुख जी बोलिए। इंडिया गेट अरे पर जॉर्ज पंचम का, आपके पिताजी का, अब्बा का, पिताजी का फोटो लगा के रखा। अरे हम हैं वो जिन्होंने, मोदी है पांडे वो जी, जिन्होंने वो आपके अब्बा थे। सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेज आपके अब्बा हैं, आप भूल रहे हैं। सुनिए, सुभाष चंद्र बोस का सच्चाई बड़ी कड़वी है। पांडे जी सुनिए ना, पांडे जी सुनिए। अब देशमुख जी बोलिए। देशमुख जी बोलिए। देशमुख जी बोलिए। आपका इतिहास है मुखबिरी का। सुनिए, आरएसएस का इतिहास है मुखबिरी का। बात बहुत बड़ी कड़वी है, और वो आपके अब्बा थे। आप मुगलों के बारे में तो बार बार बोलते हो, लेकिन जो आपके अब्बा अंग्रेज थे उनके बारे में नहीं बोलते हो। जिन अंग्रेजों ने लूटा सही माने में इस देश को, उसके बारे में आप कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि वो आप उनके मुखबिर थे, आप उनके लिए काम करते थे। 1900 आप भूल रहे हो ना, जब आजादी की जंग 1857 से शुरू हुई है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई है। मैं कहता हूं 1925 से लेके 1947 तक ये 5 आदमी बता दीजिए आरएसएस के, जिन्होंने मतलब इस देश की जंग के लिए, देश के लिए बलिदान किया है। बता सकते हैं क्या? आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग मुखबिरी करते थे। इसको आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक काली कड़वी सच्चाई है ये, आप मान लीजिए। आज ये इस देश का दुर्भाग्य है, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज, सुनिए पांडे जी बात सुनिए जरा भी। जिस गांधी परिवार पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, उस गांधी परिवार ने इस देश के ऊपर 2 गांधी कुर्बान किए हैं। आप उस खानदान की बराबरी नहीं कर सकते हैं, ये मान लीजिएगा। उस खानदान की बराबरी नहीं कर सकते हैं आप। इस देश के लिए शहादत दी है उन्होंने, इस देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए। वो इंदिरा जी हो या राजीव जी हो, उन्होंने कुर्बानी दी है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? ये देश का दुर्भाग्य है कि आज आप सत्ता में बैठे हैं। केजरीवाल जी के 5 प्रश्नों पर आता है। देशमुख जी, केजरीवाल जी ने कहा सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे, सरकारों को गिराने के लिए। आरएसएस इंटरफियर क्यों नहीं कर रहा है? करप्ट लीडर्स को बीजेपी के अंदर ले रहे हैं, आरएसएस इंटरफियर क्यों नहीं कर रहा है? आरएसएस कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी को कि जो भी हो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं? आगे कहा कि बीजेपी ने कहा कि आरएसएस से हम बड़ा हो गया, वी आर बिगर देन द आरएसएस, वी डोंट रिक्वायर देम। उस पर जवाब मांगा है मोहन भागवत जी से, और कहा कि 75 इयर्स रिटायरमेंट क्या होगा मोदी जी के लिए। ये 5 प्रश्न का क्या जवाब मिलेगा आरएसएस से? देखिए, एक बात है, अगर जवाब मिलता है, बात सुनिए, तो अगर जवाब मिलता है, मोहन भागवत जी अगर इसका जवाब देते हैं, तो हम ये मानेंगे कि भाई आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी है। वरना ये जिस तरीके से मतलब जेपी नड्डा जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि भाई अब आरएसएस जो है, बीजेपी जो है वो आरएसएस से बड़ी हो चुकी है। और हकीकत भी आज के तारीख में यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है, भले ही वो आरएसएस से निकली हुई मतलब एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक संगठन है, लेकिन आज ये प्योरली कमर्शियल संगठन है। ये सिर्फ अदानी और अंबानी की भारतीय जनता पार्टी बन के रह गई है, ये अब आरएसएस का हिस्सा नहीं रहा। मैं ऐसा लग रहा है मुझे। मैं पांडे जी, आपका रिप्लाई से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बात करें, थोड़ा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के सुनिए, सैयद नासिर हुसैन साहब सुनिए, फिर दोनों का जवाब एक साथ दे देना। पांडे जी जरा आराम से सुनिए, जरा उनको बोलने दो। पांडे पूरा सुनूंगा। हाँ। लेकिन प्रदीप जी, फिर मैं जब बोलूं तब नहीं होगा। नासिर हुसैन साहब बोलिए। हेलो नासिर हुसैन साहब बोलिए। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज आ रही है आपको? हाँ, यस, वी कैन हियर यू। बोलिए। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन्होंने बात की। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने ही कहा था कि देश के विभाजनकारी के 2 लोग बनेंगे। दोनों का नाम लिया था, उसका नाम क्या था? हिंदू महासभा और आरएसएस। इन्होंने कहा था, उनके किताब में है कि इस देश के जो बंटवारे के जो कारण बनेंगे ये 2 लोग होंगे। उसमें मुस्लिम लीग का भी नाम लिया था उन्होंने। तो हम तो मानते हैं कि ये तीनों एक ही सिक्के के एक पहलू है। ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार आपने चलाई बंगाल के अंदर। आप जिनकी बातें करते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और उनकी, वो किसके साथ सरकार चला रहे थे? इसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार वहां चला रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी आर्मी बनाई, उसमें नाम क्या रखा? किसी का गांधी रखा, किसी का पंडित जवाहर रखा, ऐसे नाम दिया अपने सेनाओं के गुट का,
तो आप कैसे बोल सकते हो सुभाष चंद्र बोस की हमने इज्जत नहीं दी? और आप बोलते हो कि बाबा साहब अंबेडकर को हमने, अरे बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री कांग्रेस लेके बनाती है, उनको संविधान सभा में हम लेके आते हैं, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस बनाती है, आप बोलते हैं उनको इज्जत? अरे लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में जनता अगर उनको वोट देती है और हराती है, आप उसको बोलते हैं कांग्रेस ने हरा दिया? लोकतांत्रिक तरीके में पंडित नेहरू के खिलाफ भी चुनाव लोग लड़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। अगर उस समय अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई इलेक्शन देश में हो रहा है, उस समय बाबा साहब अंबेडकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने वाला भी चुनाव लड़ रहा है, तो उस समय की आवाम ने वो फैसला किया है, तो आप बोलते हो कि हमने हरा दिया? अरे बाबा साहब अंबेडकर पे सबसे ज्यादा किसी ने हमला किया तो आपने हमला किया, उनके संविधान के खतरे, आज उनके खतरे में डाला तो आपने डाला, बहुजनों को आपने, वंचितों से उनको महरूम रखा तो आपने रखा। अरे हमने तो संविधान की बात की, हमने लोकतांत्रिक तरीके की बात की। अरे पंडित नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक देखिए, हजारों सरकारी कंपनियां बनी, आज उसमें किसको रिजर्वेशन मिला था? वंचितों को मिला, ओबीसी को मिला। आपकी रोहिणी कमेटी है जो यही मोदी सरकार लेके आती है, रोहिणी कमेटी बोलती है आज ओबीसी का फायदा नहीं मिल रहा है, 5% का ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। आप उस पर बात करो, क्यों नहीं ओबीसी के रिजर्वेशन का लोगों को फायदा मिल रहा है? आज मराठा समाज, जंगे समाज, सारे लोग बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? आज देश में बेरोजगारी चरम पे है, लोगों के पास काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम की आप बात करते हो, आप अब्बा पिताजी की बात करते हो। अरे आप बात करो, तरीके से बात करो, आपके पास कोई तर्क है उस पर बात करो। आप अनाप शनाप अर्गन बात कर रहे हो। अरे आप तर्कों से आप हमें कुछ भी बोल सकते हो, पर आप बोलते हो आपने पिताजी की फोटो लगाई। अब मैं तो कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं किया आपके लिए, आपने इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अरे हमने जो कहा वो संविधान, हमने जो कहा वो किताबों में कोट है, वो उनके आज उनके म्यूजियम में रखा हुआ है। जो सावरकर साहब ने कहा वो सावरकर साहब की किताबों में लिखा हुआ है। आप बोलते हो हमने उनका अपमान किया। अरे उन्होंने 60 रुपया पेंशन लिया है ना, अंग्रेजों के साथ उन्होंने मुखबरी की है ना, उन्होंने जो किया है वो तो किताबों में दर्ज है। आपने ही लिख के दिया था, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करता हूं, हम इस आंदोलन को क्रश कर देना चाहिए, इस महात्मा गांधी के आंदोलन को खत्म करना चाहिए और हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे, हम अंग्रेजों के वफादार हैं। ये तो आपने लिख कर दिया है, वो तो एविडेंस है, आज भी रिकॉर्ड में है, उसको कैसे झुटलाओगे आप? इसका जवाब दो। बस अनाप शनाप नासिर जी और उनकी बात कर रहे हो। नासिर जी, पांडे जी आप जवाब दीजिए, दोनों महमूद देशमुख जी और नासिर हुसैन साहब का जवाब दीजिए। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता, उनके संविधान का जिस तरह से अपमान, जिस तरह से बदलाव कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो ये किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी आज कहती है संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान को बदलने का काम, उसमें संशोधन करने का काम, उसको कुरूप करने का काम और डॉक्टर बाबा साहब करने का काम कांग्रेस ने किया। आप करेक्शन करिए उसमें से। नहीं, आपके पास आऊंगा ना, इनको बोलने दो। नहीं, बोलिए, मेरी बात सुनिए, फिर आप बोलिए। मैंने आपकी बात सुनी, मैं बीच में नहीं टोका। यस, मुझे ये बताइए, संविधान का आज जो स्वरूप है ये था क्या? पहले नहीं था। पहले भगवान राम का, राम दरबार का फोटो था। आज उसके बाद यहाँ पर नटराज का फोटो था, उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, उसके अंदर और भी बहुत सारे आध्यात्मिक, धार्मिक, देश के पारंपरिक और परंपरा से जुड़े हुए वो फोटो थे। आज संविधान में वो फोटो है क्या? आज संविधान में वो फोटो है क्या? क्यों निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया? ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपमान है। सेकुलरिज्म, मैं ये कहता हूँ, सेकुलरिज्म ये जो शब्द है 1975 तक नहीं था। 1975 तक नहीं था। 1975 जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसमें वो क्यों आया? उसमें सेकुलरिज्म क्यों घुसेड़ा गया? मैं पूछता हूँ। आप बताओ ना। नहीं, 1976 तक सेकुलरिज्म नाम का कोई चिड़िया थी नहीं संविधान के अंदर, फिर ये क्यों जबरदस्ती घुसेड़ा गया उसके अंदर? हाँ, और आज राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। मुझे बताइए, देश का बहुसंख्यक समाज को हिंसक कहना ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं? 100 से ज्यादा संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये संविधान के खिलाफ काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया क्या? ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया कि नहीं किया? तो पहले तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
और आज वो आरक्षण खत्म करने निकले हुए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने निकले। और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ये कभी होगा नहीं, मुमकिन नहीं होगा, असंभव होगा। और मैं तो ये कहूंगा राहुल गांधी को उनके वक्तव्य के लिए ये माफी मांगनी चाहिए देश से। कौन सी बात है माफी? ओके, महमूद देशमुख जी द फाइनल राउंड कैसे देखते हो? 2 महीने में चुनाव है महमूद देशमुख जी। ऐसा है पांडे जी ऑलरेडी मतलब रिंग में उतर चुके हैं लड़ाई के, पूरे स्टेट मतलब लड़ाई के मूड में है ना। पांडे जी लड़ाई है, इलेक्शन चुनाव जो है मुद्दों पे लड़ा जाता है, गुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है ना। आप जो भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से आप बार बार वही है, राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, आरक्षण का विरोध किया, अहिंसा, अरे भाई लॉजिकली बात कीजिए, एक मुद्दे पे बात कीजिए। और सेक्युलरिज्म की जो आप बात कहते हैं, मैं प्रदीप जी इनसे ये बार बार सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं ना, ये सेक्युलरिज्म इसका जो है ना, सुनिए दिल है, दिल हार्ट है इस संविधान का, इस देश का हार्ट है संविधान। पहली बात तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि इस हर आदमी को सुनिए अपना अपना अधिकार तो है, लेकिन इस देश का इस तरह सरकार जो भी बैठेगा सरकार में उसका कोई धर्म नहीं होगा, समझेंगे नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि जो सत्ता में मतलब सरकार जो होगी उस सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति इस देश का हर नागरिक अपने अपने धर्म का पालन करेगा, अपने अपने घरों में अपने देशमुख जी फाइनल वर्ड, क्या मोदी जी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। मोदी जी अमित शाह जी अलग तरीके से पेश करते हैं। सुनिए कैसे कर सकते हैं आप? एनडीए कोई नहीं करता, सुनिए नहीं डीएमके वाले कहते हैं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, ये अपमान नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारा कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर हलफनामा देते हैं। आप राम सेतु के खिलाफ हलफनामा देते हैं, आप रामचरितमानस के आपके समाजवादी पार्टी के नेता अपमान करते हैं। आप हर तरह से सनातन धर्म का प्रदीप जी उनको समझाइए। पांडे जी सुनिए, मैं आपके पास किसके बता रहा हूँ। देशमुख जी अमित शाह जी, मोदी जी कंटिन्यूअस कैंपेन इन महाराष्ट्र, क्या किस प्रकार से देखते हो? अगर मैं आप ये क्या संविधान के दायरे में है क्या? बोलिए देशमुख जी, बोलिए इस तरीके से। अरे आप इन्हें समझाइए। सुनिए ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ लास्ट आप सुनिए मेरी बात। देशमुख जी 1 मिनट में समाप्त। देशमुख जी पांडे जी मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। पांडे जी देशमुख जी फाइनल वर्ड 1 मिनट। थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए पांडे जी। देशमुख जी 1 मिनट में समाप्त कीजिए। ठेकेदार आप नहीं है, बात सुनिए। इस देश के अंदर जो शंकराचार्य है ना, जो ये 5 पीठ है जो शंकराचार्य हैं इस देश के अंदर, ये इस देश के अंदर हिंदू धर्म के वो सर्वोच्च मतलब पद पे बैठे हुए लोग हैं, सर्वमान्य सम्मानित पद लोग हैं वो। आप लोगों ने शंकराचार्य जी का भी अपमान किया है राम मंदिर के समय में, आप समझेंगे नहीं? तो आपको हिंदुत्व का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म हजारों साल से इस देश में रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी 1980 में पैदा हुई है, ये भूलना मत आप। वो आपका हिंदुत्व नहीं है, आपका हिंदुत्व राजनीतिक हिंदुत्व है। कितने परसेंट हिंदू है आज हिंदुस्तान में? हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। हिंदुत्व राजनीतिक है, मुझे बताइए ना, आपका हिंदुत्व राजनीतिक है। सुनिए अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ी है, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, ये क्या है? फाइनल राउंड 1 मिनट बोलिए साहब। देशमुख जी आप 1 मिनट में समाप्त कीजिए। देशमुख जी बांग्लादेश में जाओगे, देशमुख अरे भारत के भी बारे में देशमुख 1 मिनट में राउंड अप कीजिए। मोदी जी अमित शाह जी डेरा लगा कर बैठे हैं महाराष्ट्र में, क्या रिजल्ट होगा देशमुख जी? अरे रिजल्ट यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए तो ये सब तमाशा कर रहे हैं ये लोग। और क्या है तमाशा कर? यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में, और हरियाणा भी मैं आपको बता देता हूं मैं, है ना। ये जा रहे हैं, तो कश्मीर में भी ये कहीं नजर नहीं आने वाले कल में ये सब चीज आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए पांडे जी हमारे काफी छटपटा रहे हैं, किसी तरीके से मैं माहौल बना लूं ताकि यहाँ पे कुछ निकल जावे। 1 मिनट में किस प्रकार से देखते हो मोदी जी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, ये पूरे एक जिस प्रकार से आरोप है आपका कि पूरे एक परिवार है, एक परिवार है प्रदीप जी, ये एक परिवार है, एक परिवार है। ये मोदी जी का परिवार है, अदानी, अंबानी,
ये मोदी जी का परिवार है। पांडे जी लास्ट में आऊंगा मैं आपके पास। नासिर हुसैन साहब 1 मिनट, हाउ डू यू सी द इलेक्शन, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, कैसे देखोगे आप? नहीं ठीक है, नहीं अभी आपके सवाल से पहले संविधान पे इन्होंने बात कर रही है तो थोड़ा उस पर बोलना जरूरी हो गया कि बार बार बोलते हैं सेक्युलर वर्ड आया। अरे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल 10 साल से आपकी है, तो आप क्यों नहीं बदल देते हो? है हिम्मत तो बदल दो। सुना किसको रहे हो आप? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अरे आपके पास आंकड़ा है बदलने का? आज जिस तरह 1 नेशन 1 इलेक्शन का सगुफा आपने छोड़ा है, आपको मालूम है कि ये बिल आप पास नहीं कर सकते हो क्योंकि उसको संविधान के आपको कैबिनेट में पास तो कर सकते हो, मगर आप असेंबली में पास कैसे करोगे? संसद में कैसे करोगे? 362 वोट चाहिए, आपके पास टोटल वोट कितना है? 293। तो कैसे पास करोगे? जरा जवाब दो। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिस तरह से सगुफा छोड़ा है, उसी तरह का ये बात हिंदू मुस्लिम का कर रहे। 37%। आप एंकर हैं, एक महान एंकर हैं, आप पूछिए कौन सा 30% की बात करें? हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी 37% बढ़ गई। कुछ भी बोल के चले जाओगे आप किसी चैनल पे, कुछ भी झूठ बोल के निकल जाओ। 37%। कोई आंकड़ा होता है? और कुछ बोलना है फिर चाहिए। हम लोग पांडे जी के थ्रू सम अप कर लेते हैं। और कुछ बोलना नासिर हुसैन साहब? आप नहीं, आप संविधान में संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो संविधान में जो चेंजेस है, आप चेंजेस नहीं हो रहा है, संशोधन हो रहा है। मैं बार बार संशोधन को अब संविधान बदलना बोलोगे तो इससे बचपना ही तो कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे? संशोधन तो अभी भी आपने किया है। 370 का हुआ, इस 35A का वह संशोधन है। हम नहीं कह रहे कि संविधान बदल गया। आप संशोधन को बदलना बोलते हो तो ये आपकी बेवकूफी नहीं है तो क्या है? आप हिंदू मुस्लिम बात करो, अरे विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, मणिपुर में क्यों आज राइट हो रहा है उस पर बात करो, तमाम जगह रेपिस्ट क्यों बढ़ रहे हैं उस पर बात करो। आप उस पर बात नहीं, किसान सुसाइड क्यों महाराष्ट्र में इतना ज्यादा हो रहा है उस पर बात करो। उस पर बात नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम बात करना है। आज अमरावती में देखिए कितने लोगों ने, किसान ने सुसाइड किया, विदर्भ में कितने लोगों ने सुसाइड किया, उस पर बात करो। नहीं, वहां खामोशी है। अरे कैसी डबल इंजन की सरकार की वहां फाइनल वर्ड शैलेश पांडे जी, द फाइनल वर्ड 1-2 मिनट में समाप्त कीजिए प्लीज, देन वी आर एंडिंग द शो। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कहा कि बाकी बात करो, बिल्कुल आज महाराष्ट्र के अंदर जो विकास का काम हमारी महायुति की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसीलिए विरोधियों के पेट में ये दर्द हो रहा है। आज ये कहते हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, ये महाराष्ट्र का देश का हिस्सा नहीं है क्या? अरे भाई मेरे बोलने दो, मेरे भाई, ये भाई होता है। एक मिनट बोलने दो। अरे भाई ठीक है, आप बोलते हो। अरे बोलिए। वो देखो क्या नाम है अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, नासिर हुसैन जी, बोलिए। नासिर हुसैन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छा नॉलेज है इनका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नासिर भाई सभी को मौका दीजिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। बोलिए ना शैलेश भाई, बोलिए ना। और मैं ये कह रहा था कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, आज ये महाराष्ट्र आ रहे ऐसा नहीं है, हमेशा से आए। इसके पहले भी बड़ी से बड़ी योजनाएं महाराष्ट्र के लिए लाए। वार्ड 1 बंदरगाह की जो योजना रही, आज 76,000 करोड़ की वो योजना आ रही है, जिससे 1 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। अमरावती में नया वस्त्र उद्योग पार्क लगाया जा रहा है, जहाँ 1 लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। मुंबई के अंदर आज अटल सेतु बना, मुंबई के अंदर हमने जो कोस्टल रोड बनाए, मुंबई के अंदर मेट्रो का जाल बिछाया। आज ये सारे जो योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नई नई कंपनियों को हम लोग ला रहे। और जो अभी जो सबसे बड़ी योजना रही मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, जिसके लिए महाराष्ट्र की माताओं बहनों ने खुलकर हमारी महायुति सरकार को आशीर्वाद दिया है। और ये विकास विकास विकास, मातृशक्ति का आशीर्वाद, इन सब कारण से आने वाले समय में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से बनेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र फिर से विकास करेगा। आपने अभी हाल का आंकड़ा देखा होगा कि देश के अंदर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने वाला राज्य एक बार फिर से बन गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नीति के कारण, हमारे कामों के कारण, महाराष्ट्र सरकार के महायुति के कारण एक बार फिर से महायुति को महाराष्ट्र की जनता फिर से सरकार में ला रही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू सो मच नासिर हुसैन साहब, महबूब देशमुख जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू शैलेश पांडे जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्कशन, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चला और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। एंड ऑलवेज, एज वी ऑलवेज से, वी एंड विद द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And when you end with fraternity, it's eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. You can subscribe to Nation Now. You can hear the bell, knock on it, click on the arrow, and you subscribe to Nation Now to get in associate with one of the best channels in the country right now. And as we say, it's a fundamental duty of all political parties to see that the pillars of the Constitution are safe and secure. As we always say, if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives, the people, and if the Republic survives, the people of India survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.